وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. آزادارو، آ گئی وہ شب، آ گئی وہ رات کہ جو زینب ام کلثوم کی یتیمی کی رات ہے. یہ وہ رات ہے جو عباس کی یتیمی کی رات ہے. یہ وہ رات ہے جو حسن اور حسین کی یتیمی کی رات ہے. جی بھر کے گریہ کرنا، جی بھر کے پرسہ دینا عزادارو. رونے میں شرمانا نہیں. کیا پتا کس کے پہلو میں آج حسن بیٹھے ہو، کیا پتا کس کے پہلو میں حسین بیٹھے ہو، کیا پتا کس کے پہلو میں عباس بیٹھے ہو. آج فاطمہ زہرا کے ساتھ زینب ام کلثوم بھی آئی، اور ان بیویوں کے ساتھ مولا علی کی وہ 4 سالہ بیٹی کہ جو باپ کی شہادت کے ٹھیک 2 دن کے بعد اپنے بابا کے پاس چلی گئی. وہ خدیجہ بنت علی بھی آئی. عزادارو، رونے میں شرمانا نہیں. چلے امیر المومنین مسجد کی طرف. مسجد میں پہنچے علی، محراب عبادت میں آئے. گلدستہ آذان میں امیر المومنین نے اپنی زندگی کی آخری آذان کہی. یہ وہ رات تھی کہ جب 2 مرتبہ مولا حسن اور بی بی زینب نے کہا کہ بابا آج کی رات مسجد میں نہ جائیے. بابا اپنی جگہ مؤذن سے کہیے کہ وہ آذان دے دے. بابا اپنی جگہ کسی اور سے کہیے کہ نماز پڑھا دے. لیکن کون جانتا تھا کہ آج کی رات علی کو کائنات کی کوئی شے مسجد میں جانے سے نہیں روک سکتی. ایک مرتبہ صحن میں آ کر کہا کہ یہ وہی رات ہے کہ جس رات میری داڑھی میرے ہی سر کے لہو سے رنگین ہو جائے. مسجد میں پہنچے، محراب میں آذان دینے کے بعد مصلی عبادت پر آئے. عزادارو، مصلی پر نماز شروع کی امیر المومنین نے. جماعت شروع ہوئی، نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں، علی نماز پڑھا رہے ہیں. دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں ایک مرتبہ امیر المومنین نے اپنے سر کو رکھا. یہاں ابن ملجم ملعون نے توڑنا شروع کیا. خدا کی لعنت ہو اس ملعون پر، اس نے توڑنا شروع کیا اور اس مقام پر پہنچا جہاں علی کا مصلی بچھا تھا. اس نے اپنی تلوار کو نکالا، ادھر علی نے سر سجدے سے اٹھایا، ادھر ابن ملجم نے تلوار کو چلایا. تلوار اسی جگہ پہ لگی جہاں خندق میں عامر نے زخم مارا تھا. ایسا زخم لگا کہ سر پیشانی تک کھل گیا، سر پیشانی تک کھل گیا. شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں کہ کائنات کے جتنے فقہا ہیں سب نے اس بات پر سوچا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جب کوئی نمازی نماز نہ پڑھ سکے تو اس کے لیے شریعت کہتی ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، اور جو بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکے اس کے لیے شریعت کہتی ہے کہ وہ اشارے سے نماز پڑھ لے. شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ علی نے اپنی آخری نماز کس طریقے سے ادا کی، اس لیے کہ سر سے اشارہ وہ کرے جس کا سر سے لے کے پیشانی تک کھلا نہ ہو، اور آنکھوں سے اشارہ وہ کرے جس کی آنکھیں لہو سے بھری نہ ہو. علی کا سر بھی کھلا تھا، آنکھیں بھی لہو سے بھری. علی کیسے علی نے آخری نماز پڑھی. عزادارو، حسن دوڑے، امام حسن دوڑے، بابا کو سینے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. ادھر مولا حسن کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر رخسار امیر المومنین پر آئے تو آواز دے کے کہا، حسن بیٹا کیا تم گریہ کر رہے ہو؟ حسن کیا تم رو رہے ہو؟ کہا جی بابا میں گریہ کر رہا ہوں. تو رو کر کہا، بیٹا حسن تم گریہ نہ کرو، کیونکہ جب
तुम रोते हो तो रसूल अल्लाह भी रोते हैं। हसन जब तुम गिरिया करते हो तो खदीजा कुबरा भी गिरिया करती है। हसन जब तुम गिरिया करते हो तो फातिमा ज़हरा भी गिरिया करती है। असहाब कहते हैं कि मौला ने कहा जाओ बेटा जाके नमाज मुकम्मल कराओ। अज़ादारों नमाज मुकम्मल हुई, गनीम में लिटाकर घर में लाया गया, अली को बिस्तर पर लिटाया गया। एक मर्तबा मौला ने कहा कहाँ है मेरे बच्चे? बच्चों को करीब बुलाया गया। हुसैन मौला करीब आए, अज़ादारों मौला बाबा के करीब पहुंचे, आंखों में आंसू थे। मौला अली ने कहा हुसैन तुम गिरिया न करो, इसलिए कि तुम्हारा दिल मेरे दिल से ज्यादा बड़ा है। हुसैन तुम्हारी मुसीबतें मेरे से ज्यादा बड़ी है। रोकर कहा बाबा हुसैन ने जिंदगी में रोना ही फकत आपके लिए सीखा है। बाबा मैंने रोना ही आपके लिए सीखा है। अज़ादारों वसीयतें कर रहे हैं, एक दूसरे के हवाले कर रहे हैं। तारीख कहती है जब मौला वसीयतें कर रहे थे तो एक मंजर देखा गया, और ये मंजर बार बार हो रहा था। हुजरे में मौला बिस्तर पर थे, मौला के सारे बच्चे मौला के इर्द गिर्द थे, लेकिन 14 बरस के जनाबे अब्बास हुजरे में मौजूद नहीं थे, बल्कि हुजरे के दरवाजे पर खड़े थे। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हुजरे में आते थे और आगे बाबा के कदमों का बोसा देके हुजरे से बाहर चले जाते थे। उम्मुल बनीर की औलाद है, आखिर ऐसी ही तरबियत की है उम्मुल बनीर ने। आज़ादारों बाबा के कदमों पे बोसा देके जा रहे हैं। एक मर्तबा मौला हसन को करीब बुलाया तो हसन अपना हाथ आगे करो। मौला हसन का हाथ पकड़कर सबके हाथ मौला हसन के हाथ में देना शुरू किए। तो हसन ज़ैनब तुम्हारे हवाले है, हसन उम्मे कुलसूम तुम्हारे हवाले है, हसन मेरी बेटियां तुम्हारे हवाले है, हसन मेरी अज़वाज तुम्हारे हवाले है, हसन मेरा पूरा घर तुम्हारे हवाले है। ये कहने के बाद एक मर्तबा मौला हुसैन को बुलाया, कहा हुसैन मेरा हसन तुम्हारे हवाले है, हुसैन मेरा हसन तुम्हारे हवाले है। जब सबको एक दूसरे के हवाले कर चुके तो कदमों में से एक बीवी की रोने की आवाज आई। कहा कौन गिरिया कर रहा है? कहा उम्मुल बनीन गिरिया कर रही है। कहा उम्मुल बनीन क्या हुआ, क्यों गिरिया कर रही हो? कहा मौला क्या मेरे अब्बास से कोई गलती हो गई है, क्या मेरे अब्बास से कोई गुस्ताखी हो गई है? कहा क्या हुआ, क्यों पूछ रही हो? कहा मौला आपने सबको मौला हसन के हवाले किया, आपने मौला हसन को मौला हुसैन के हवाले किया, लेकिन मेरे अब्बास को किसी के हवाले न किया। बस ये सुनना था कि कहाँ है मेरा अब्बास, बुलाओ मेरे अब्बास को। अब्बास को बुलाया गया तो अब्बास मेरे करीब आओ। एक मर्तबा दोनों शानों का बोसा लिया, बोसा लेने के बाद एक मर्तबा पेशानी का बोसा लेकर हुसैन मेरे करीब आओ। हुसैन को करीब बुलाया तो अब्बास मैंने सबको हसन के हवाले किया, हसन को हुसैन के हवाले किया। अब्बास मेरा हुसैन तुम्हारे हवाले, अब्बास मेरा हुसैन तुम्हारे हवाले है, मेरे हुसैन का ख्याल रखना। आज़ादारों ये वही दिन है कि जब 4 बरस के या 3 बरस के सैयद साजिदीन अपने दादा के सीने पर बैठे हैं, जख्मी अली के सीने पर सैयद साजिदीन बैठे हैं। सैयद साजिदीन की आंखों का बोसा लिया और गिरिया करना शुरू किया। पूछने वालों ने पूछा मौला आप मौला सज्जाद की आंखों को बोसा लेकर गिरिया क्यों कर रहे हैं? तो रो कर कहा मैंने इन आंखों का बोसा देकर गिरिया इसलिए किया कि ये वो आंखें हैं कि जिन आंखों से सज्जाद अपनी आंखों से अपनी माँ, अपनी फूफी और अपनी बहनों को शराबियों के मजमे में बगैर चादर के आज़ादारों असहाब ने आना शुरू किया। असहाब को वसीयतें कर रहे हैं। बस 2 जुमले और सुन लेना। असहाब को वसीयतें कर रहे हैं। जब सबको वसीयतें कर चुके और शबे शहादत आ गई, 21वीं की ये रात आई, तो मौला हसन को दोबारा बुलाया। कहा हसन बेटा मुझे गुस्ल भी आप दीजिएगा, मुझे कफन भी आप दीजिएगा, और हसन बेटा मेरे जनाजे को जिस ताबूत में रखे
उस ताबूत को उठाकर कूफा से नजफ की जानिब जाइएगा। हसन नजफ की जानिब जब चलेंगे तो एक मकाम ऐसा आएगा कि एक नकाब पोश आकर आपसे ये जनाजा वसूल करेगा, उसको ये जनाजा हवाले कर दीजिएगा। हौसले से सुन लेना आज़ादारों, एक मकाम तक लेके जाना चाह रहा हूँ, एक जुमला आपके हवाले करना चाह रहा हूँ। मौला ने कहा हसन उस नकाब पोश के हवाले मेरा ताबूत कर देना। आज़ादारों तैयारी हो गई। 21 रमजान की फजर का वक्त आया, अली की बेटियों का गिरिया बुलंद हुआ, सबने गिरिया करना शुरू किया। कोई रो के कहता है वाह मोहम्मदा, कोई रो के कहता है वाह अलिया, कोई रो के कहता है हाय हमारा बाबा मारा गया, हाय हमारा बाबा चला गया। हसन मौला ने गुस्ल दिया, हुसैन मौला ने कफन पहनाया, सब ने मिलके गुस्ल कफन दिया। तारीख कहती है कि मौला का गुस्ल जब दिया जा रहा था और जब गुस्ल देने के लिए किसी की मैयत को करवट दिलवाई जाती है तो मौला हसन जब इरादा करते थे कि मौला को करवट दिलवाएं तो मौला का जनाजा खुद ब खुद करवट पे आ जाता था और मौला ने आसानी से गुस्ल दिया। गुस्ल देने के बाद ताबूत तैयार हुआ, बेटों ने ताबूत उठाया, एक शाम से अली का ताबूत उठा, असहाब पीछे पीछे है, बेटे आगे आगे है, ताबूत जा रहा है। आज़ादारों जहां से ताबूत गुजरता है दीवारें सलाम करती हैं, दरख्त सलाम करते हैं। आज़ादारों ये ताबूत गुजर रहा है, उस मकाम पर पहुंचे जहां मौला अली ने कहा था। उस मकाम पर जब पहुंचे तो सामने से एक नकाब पोश आया। उस नकाब पोश ने आकर कहा क्या तुम हसन हो, क्या तुम हुसैन हो? कहा हाँ मैं हसन हूँ, हाँ मैं हुसैन हूँ। कहा आपके बाबा की वसीयत थी कि ये जनाजा मेरे हवाले कर देंगे। तो जनाजा हवाले कर दिया। फिर पूछा कि आप कौन हैं, अपना तारुफ तो करवाइए। चेहरे से नकाब हटाया और कहा कि बेटा हसन, बेटा हुसैन, मैं तुम्हारा बाबा अली हूँ। कायनात में कोई ऐसा नहीं है कि जिसके जनाजे में मैं नहीं जाता। जुमले सुन लोगे आज़ादारों, हौसले से सुनना आज़ादारों, मौला क्या कह रहे हैं। कायनात में कोई ऐसा नहीं है कि जिसके जनाजे में अली न जाते हो, अली सबके जनाजे में पहुंचते हैं। इसलिए आज अली अपने भी जनाजे को वसूल करने आए हैं। मैं कहूंगा मौला आप कह रहे हैं कि आप सबके जनाजे में आते हैं। एक मर्तबा 50 हिजरी मदीना शहर में आइए, आपको एक मंजर देखने को मिलेगा। एक जनाजा घर से निकला, जनाजे के ऊपर इतने तीर मारे गए। मौला हसन का जनाजा तो फिर भी ताबूत में था, तो भाइयों ने जनाजा उठाया। लेकिन जरा मौला आप ही तो कहते हैं ना कि मैं सारे जनाजों में जाता हूँ। मौला जरा 61 हिजरी करबला के मैदान में आइए। शामे गरीबा कुछ जले हुए खैमों की आपको राख मिलेगी। एक बीवी टूटे हुए नेज़े से पहरा दे रही है। दूर से घुड़सवार आया, कहा कौन है? कहा ज़ैनब पहचानो, मैं तुम्हारा बाबा अली हूँ। रोकर बाप के सीने से लिपटी और कहा बाबा उस वक्त क्यों ना आए जब मेरे अब्बास के बाजू काटे गए। बाबा मैं 70 कदम से देखती रही, जालिम खंजर चले। अला लअनतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन। मातम अमीर अल मोमिनीन। उठा कोई जना